the lecture on past simple tense. Today we're gonna study this one. Now, majority of you might have idea regarding this tense, right? Today I'm thoroughly explaining the uses of past simple tense, right? So first of all, past simple tense. Before starting in detail, I give you few of the ideas regarding past simple tense, that where do we use this tense actually. Very quickly explain, we use the past simple tense for many kinds of like past events that could be short, quick as well, finished actions and happenings that have been finished, completed in past. For example, longer situations in past, and obviously for the repeated actions too. The simple past is common in stories and description of past events. Remember that. In general, the simple past tense is the normal one for taking here, like I explained in present simple tense. The same way in past simple tense, we have two sort of categories. One category is of a statement, right? ये लिखेगा यहाँ पे. And the other one is action. या तो हम स्टेटमेंट देते हैं या तो फिर एक्शन में बात करते हैं. पास्ट सिंपल क्या होता है, आई एम गोना एक्सप्लेन. फॉर एग्जांपल, स्टेटमेंट क्या, व्हेन वी टॉक अबाउट somebody's feelings, somebody's profession, or what he or she is, right? That is a statement. तो यहाँ पे स्टेटमेंट इज इन पास्ट सिंपल. तो हम किसी की भी पास्ट फीलिंग्स, पास्ट प्रोफेशंस या कोई पास्ट में क्या था उसके बारे में जब हम बात करेंगे, तो हम उसकी जगह पे वर्ड्स या वर्ब जैसे टू बी वर्ब्स लगाएंगे. टू बी वर्ब्स कौन से, पास्ट सिंपल के. लाइक दे वर हैप्पी, व्हाट दे वर, हाउ वर दे फीलिंग, हैप्पी. यहाँ पे फीलिंग्स शो कर रहे हैं. And the same with action, where we use verbs, right? Where we use verbs. For example, I saw her last night. This saw is the action verb, right? And this action verb is in second form, which is also called as past form, right? Now, simple past with finished time expressions. Simply, we use past simple tense for the finished actions or happenings that are no longer be part of present, right? For example, this diagram, I have made this diagram. This is a time loop, right? This is a time, past, one day, yesterday, and now, right? Now, in past, whenever we, वन डे, पास्ट की बात हो रही है, नाउ यहाँ पे है, राइट. पास्ट में वन डे द प्रिंसेस डिसाइडेड. नाउ वन डे शी डिसाइडेड, राइट. इट इज़ नो लॉन्गर connected or related to present. That's why decided. Now if we talk about yesterday, I saw her yesterday. Yesterday has finished, completed.
it has no connection with now. The action was completed. अब इसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वी यूज़ इट एज पास्ट टेंस. याद रखिएगा, ये जो वन डे है, लास्ट वीक है, या अगो वर्ड्स होते हैं, या प्रीवियस वीक होता है, ठीक है, ऐसे वर्ड्स के साथ हम हमेशा पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स खुद इंडिकेट करते हैं कि ये कल की बात है, आज की नहीं. कल ये बात हुई, वहीं पे ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई, उनका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, राइट. दिस वन डे एंड yesterday shows finished times, right? For example, I have explained over here, past simple is used when something has happened in past time, right? And no longer connected to the present situation या present time. हम situation लिखें या time लिखें, बात एक ही है. For example, if I write time over here, तो I can write it. Present time लिखें या present situation लिखें, बात सेम है. आई होप मैं आपको ये समझा पाई हूँ, आप लोगों को ये आता भी होगा, राइट. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ आती होगी. नाउ हम बात करेंगे द यूजेज ऑफ पास्ट सिंपल टेंस. नाउ द यूजेज, वेयर डू वी यूज़ पास्ट सिंपल टेंस. फ्यू ऑफ द थिंग्स आपको शायद इनमें से बहुत सारी चीज़ें पता हों. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, एन एक्शन completed इन द पास्ट. वो एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गए, उनका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है. ऐसे कंप्लीटेड एक्शंस को शो करने के लिए हम कुछ इंडिकेटेड वर्ड्स लगाते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये पास्ट है. फॉर एग्जाम्पल, शी रिसीव्ड द लेटर yesterday. Now the use of yesterday is the indication of past simple tense. आप yesterday के साथ कभी भी present नहीं लगा सकते, कभी भी future नहीं लगा सकते. It will always work with past tense. That's why the verb is past simple, received. For example, yesterday is adverb of time. Adverb of time बता रहा है ये adverb of time होते हैं. Yesterday, last week, last year, last month, last day, last Monday, last Tuesday, for example, a week ago, a year ago, right? इस तरीके से. I hope this is understood. The second usage of past simple tense is when we talk about something that is true or real in past without adverb of time. अब ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा टाइम बताकर ही पास्ट को इंडिकेट करें. इट इज़ नॉट नेसेसरी. पास्ट कैन बी इंडिकेटेड विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम, विदाउट यूजिंग दीज वर्ड्स yesterday, लास्ट ईयर और अ वीक अगो. इस तरह के वर्ड्स बिना यूज़ किए भी वी कैन इंडिकेट द पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट एक्शंस. ऐसे एक्शंस जो हमारे लिए पास्ट में सच्चे भी हैं और रियल भी हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, वी वर वेरी फ्रेंडली, राइट. वी वर वेरी फ्रेंडली. इसका ये मतलब है कि वी वर फ्रेंड्स इन पास्ट बट नॉट नाउ. अब हमारी उनसे दोस्ती नहीं है. ये चीज़ सच थी, रियल थी, लेकिन पास्ट में थी, राइट. I did not sleep well. Maybe yesterday, maybe last night, maybe last week. So ये during context जो हम बात कर रहे होते हैं, उन context के हिसाब से ये यूज़ हो रहे होते हैं. For example, third one, he worked in Pakistan Army. That means he no longer works there, right? अब वो वहाँ पे काम नहीं करता, but he worked there. Now यहाँ पे there is no indication of time, but we have expressed what was real and true in the past for us, right? This is the second usage.
Now, the third one, we use past simple tense for the habits in past. जो भी हमारी past की habits हैं जो हम छोड़ चुके हैं, उन habits के बारे में हम यूज़ past simple इस्तेमाल करेंगे. For example, I lied a lot. Maybe I do not lie now. She always carried an umbrella. अब शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, ये उसकी आदत थी. अब या तो मैं उसे नहीं देखती हूँ या तो उसने अम्ब्रेला लेनी छोड़ दी है, राइट. बोथ द सिचुएशंस आर पॉसिबल हियर. अनदर इज व्हेन वी टॉक अबाउट ड्यूरेशन इन पास्ट. हम ड्यूरेशन के लिए भी ड्यूरेशन भी इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल में. जैसे यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर पास्ट सिंपल में भी होता है. I lived there since I left school. जब से मैंने स्कूल छोड़ा मैं वहाँ रहता था. शायद अब वहाँ नहीं रहता, राइट. He studied there for 3 years. उसने वहाँ पे 3 साल तक पढ़ाई की. शायद अब वो वहाँ पे पढ़ाई नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता. So since and for can also be used in past simple tense to indicate the duration of time in past, right. Then number 5th is when के साथ जो हम clause यूज़ करते हैं. when के साथ ऐसा टाइम जो ख़त्म हो चुका है, ऐसा एक्शन जो ख़त्म हो चुका है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जब हम when लगाते हैं तो उसके साथ जो क्लॉज लगेगा वो हमारा पास्ट में होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम when लगाएंगे वो हमारा जो सेंटेंस होगा वो पास्ट होगा. when I saw her, राइट. फिनिश टाइम की बात कर रही हूँ, मेरा पास्ट. when I saw her. अब जो मेरा दूसरा क्लॉज है वो किसी भी टेंस में हो सकता है, ऐसा नहीं होगा. वो भी पास्ट में होना चाहिए, राइट. क्योंकि हम फिनिश्ड चीज़ों की बात कर रहे हैं, फिनिश्ड एक्शन की बात कर रहे हैं, कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं. when I saw her she was crying. शायद जब मैंने देखा वो रो रही थी, राइट. फिर मैं चला आया, मे बी वो फिर भी रो रही हो या उसने रोना बंद कर दिया हो. when I told him. the next sentence is when I told him the truth he got angry. when के साथ हमेशा told मतलब पास्ट सिंपल फॉर्म है तो इसलिए सेकेंड वर्ब फॉर्म लगेगी, राइट. सो आई होप you have understood all these 5 usages which are very easy. So I do not need to go or teach you thoroughly. मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा, इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा. So this was all about the usage of past simple that you think. No, it is not all. The most important thing जो हम past simple के बारे में पढ़ने वाले हैं इसके अलावा वो हम अब पढ़ेंगे. I also teach you some other uses of past simple जो शायद आपको पता हो लेकिन आपको इस तरीके से पता ना हो. For example, here this. Now for starting हमको स्लोली ग्रेजुअली पढ़ाऊँ. अच्छा, इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, प्लीज़ फोकस ऑन दिस थिंग. पास्ट वर्ब फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल विथ प्रेजेंट और फ्यूचर मीनिंग. यस, past forms of verb also tells us the meaning related to present और future. ये हमें present और future की meanings भी देते हैं. मतलब हम past form present की situation को explain करने के लिए भी यूज़ करते हैं और past form future की situation को explain करने के लिए भी लगाते हैं. है ना interesting? Isn't it interesting? I always say English is a weird language. It is the weirdest one. So how past form
can tell us about the situation of present or future, right? हम प्रेजेंट और फ्यूचर की सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए पास्ट वर्ब फॉर्म लगाते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन, क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट, etc. अच्छा, मैंने यहाँ पे आप लोगों की सहूलत के लिए, फैसिलिटी के लिए यहाँ पे मैंने इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट यू ऑल I have written few of the descriptions over here to make it more clear, ताकि जब मैं पिक्चर्स भी शेयर करूँ तो आप लोगों को पता हो या आप लिख सकें, क्योंकि मुझे few of the students said to me कि I explained verbally a lot but I did not write anything, so I must write few of the definitions too, yeah, explanations too in simple words so that they can read it by themselves and understand, right? So that's why I'm writing the explanations in easy words. जितना easy हो सका मैं उतना easy लिख पाई हूँ इस चीज़ को, ओके? अब कैसे? जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, उस सिचुएशन में हम पास्ट वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर की सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे वी कैन मेक क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स। Questions, requests and offers by using past tense. Why we use past tense for questions, requests and offers? Because it makes your language more polite बनाती है आपकी लैंग्वेज को, तहजीब वाला बनाती है आपकी लैंग्वेज को अदब वाला बनाती है, राइट? कॉमन फॉर्मूले आर, वी कैन मेक क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स इन प्रेजेंट टाइम और फॉर फ्यूचर टाइम बाय यूजिंग पास्ट टेंस। वाई? टू मेक देम मोर पोलाइट, उनको ज़्यादा पोलाइट बनाने के लिए, ज़्यादा तमीज़ वाला बनाने के लिए, मतलब बहुत तमीज़ से जो बात की जाती है उसे पोलाइट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किस सिचुएशन में, कहाँ पर? जब भी हमारे पास सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स हों या हम ऐसे वर्ड्स से सेंटेंस शुरू करने वाले हों, जैसे आई वंडर्ड, ये मैंने आई लगाया है, कोई भी हो सकता है प्रोनाउन। आई वंडर्ड, आई थॉट, आई होप्ड, इस तरह के एक्सप्रेशंस के साथ हम जो है वो पास्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट, आई वंडर्ड इफ़ यू वर फ्री दिस इवनिंग। नाउ आई वंडर्ड इफ़ यू वर फ्री दिस मॉर्निंग में हम या तो लगा सकते थे इफ़ यू आर फ्री दिस मॉर्निंग और इफ़ यू विल बी फ्री दिस मॉर्निंग। Instead of using are and will be, to make it more polite, I use were here, right? Then the second, I thought you might like some flowers. I thought you might like, now use of might, यहाँ पे may आ सकता था। Instead of using may, to make it more polite, I use might here, because the word expressions that I use in this start is thought. So whenever we use in the start of the sentence these words, I wondered, जब भी आप wondered का लफ्ज़ यूज़ करो at the start of the sentence, जब भी I thought बोलो at the start of the sentence, या I hoped बोलो start of the sentence, तो further उसको ज़्यादा पोलाइट बनाने के लिए आप पूरी स्टेटमेंट पास्ट फॉर्म में ले जाएंगे, राइट? अब ये यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशंस एक्सप्लेन कर रहा है। मुझे लगा तुम्हें कुछ फूल पसंद आएंगे, राइट? सो
इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। द नेक्स्ट इज़ पास्ट मॉडल्स। हम पास्ट मॉडल्स को प्रेजेंट और फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल द पास्ट मॉडल फॉर्म्स, मॉडल वर्ब्स जो होते हैं उसकी बात हो रही है। द पास्ट मॉडल फॉर्म्स जैसे कि कुड, माइट एंड वुड। ठीक है, इसमें शुड भी आता है पर वो हम किसी और दिन पढ़ेंगे। कुड, माइट एंड वुड, देयर आर 12 uses of would, I already told you। तो मैं सारे यूजेस ऑफ वुड के आपको पढ़ाऊँगी। कुड, माइट एंड वुड यूजुअली हैव प्रेजेंट और फ्यूचर रेफरेंसेस। हम कुड का इस्तेमाल, माइट का इस्तेमाल और वुड का इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट या फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये पास्ट नहीं है, जैसे कुड यू हेल्प मी फॉर अ मोमेंट, क्या आप मेरी मदद करें। ओके, सो could you help me for a moment? The use of could is more polite than the use of can. You sound more polite while using could than using can, right? Could you help me for a moment? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, right? Would you come this way please? Now would is used instead of will. Now the would is more polite. This would is more polite than the use of will. Will you come this way please? क्या आप यहाँ आएंगे? I think it might rain soon. Now the use of might is more polite than the use of may. शायद आज बरसात हो, मुझे लगता है। So I hope this is understood. Now we are moving to the next strange use, that is past focus on continuous situations। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल जो सिचुएशंस अभी तक कंटिन्यू हैं, स्टिल एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनकी जगह पे भी हम उनको एक्सप्लेन करने के लिए समटाइम्स पास्ट इस्तेमाल करते हैं। अब उसका एक रीज़न है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, फॉर एग्जांपल वी आर इन अ कन्वर्सेशन विद समबडी, हम बातें कर रहे हैं किसी के साथ एंड हम पास्ट की बात बता रहे हैं किसी को, तो इन दैट सिनेरियो कुछ ऐसी सिचुएशंस है जो स्टिल एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम वो कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में उन चीज़ों को पास्ट में ही एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी यूजुअली यूज़ पास्ट टेंस इवन फॉर थिंग्स विच आर स्टिल ट्रू एंड सिचुएशंस विच स्टिल एग्जिस्ट। ये मैंने अंडरलाइन जो किए हैं, हाईलाइट जो किए हैं, इनको गौर से देखें। पास्ट टेंस यूज फॉर थिंग्स विच आर स्टिल ट्रू and the situation that still exist। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से बात कर रही हूँ और बात करते 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 जैसे ये 3 डॉट्स फर्स्ट सेंटेंस में ये 3 डॉट्स मैंने लगाए हैं, दैट मीन्स इससे पहले बहुत सारी बातें हो रही हैं पास्ट इवेंट्स की, में भी मेरी लाइफ के बारे में या किसी और की लाइफ के बारे में। तो बहुत सारी बातें कर करके मैंने उसके बीच में एक जुमला बताया ना, उसी पास्ट स्टोरी, एक स्टोरी का हिस्सा था। जैसे वी लेफ्ट कराची, राइट। अब नाउ इस वजह से ये सिनेरियो हमारा पास में चला गया। इट वॉज सच अ नाइस सिटी। नाउ मैंने कराची के लिए वॉज लगाया है, इट स्टिल एग्जिस्ट, कराची स्टिल एग्जिस्ट, बट आई यूज्ड वॉज इंस्टेड बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माई पास्ट एक्सपीरियंसेस, मे बी माई पास्ट लाइफ, एक स्टोरी बता रही हूँ, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई यूज़ वॉज इंस्टेड ऑफ इज। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड सेंटेंस मैंने एग्जांपल बनाया है, मैंने थोड़ा रियल लाइफ सिचुएशंस को मिलते जुलते बनाया है ताकि आप उसको समझ पाएँ। अब ये मैंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, डू यू रिमेंबर दैट नाइस बॉय वी मेट ऑन बीच। नाउ दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग, do you remember that nice boy we met on beach?
He was Punjabi. Now the boy is still alive, exists. But when I met him, मैं तब की बात कर रही हूँ. He was Punjabi. वो आज भी पंजाबी है. But when I met him, he was Punjabi. वो exist करता है, लेकिन मेरा context जो है वो past में है. So that's why I explain it in the past. पूरी बात को. The third one, I got this job because मुझे ये job मिली because I was a good teacher. I am still a good teacher, but in a context that I'm talking about, I use was. Are you deaf? Are you deaf? I asked how old you were. Right? Maybe somebody is telling me his or her story. Right? So, in that context, I'm asking him or her this question. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुझे बता रहा था कि जब वो उसने बहुत सारी मिस्टेक्स की, एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, उसने बाइक का एक्सीडेंट कर दिया था. तो अब मैं एक स्टोरी बना रही हूँ, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि जब तुमने ये किया था तब तुम्हारी उम्र कितनी थी. राइट? तो in that context, in that scenario, we use past simple tense. I hope मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ ये चीज़. Now the fourth usage, past form to express unreal or conditional ideas. Now these are called second and third conditionals. ठीक है? But this I'm gonna explain afterwards. I'm not gonna explain this in this lecture. I hope I have made you understand this whole past simple tense. ये further usage भी मैं आपको समझा पाई होंगी. तो I'm uploading this video. Whatsoever you do not get or understand, just ask me. I'm explain it again.